નમસ્કાર, સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે વિકાસ મકવાણા। તો તમિલનાડુના કન્નૂરમાં જે દુર્ઘટના સર્જાઈ છે ત્યારબાદ આજે સીડીએસ બિપિન રાવત સહિતના તમામ લોકોને અત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે। જે તમામ જે જવાનો છે તેમને અત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે। મહાનુભાવો અત્યારે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે। તેવામાં ત્યાંના સીધા દિલ્હીના દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં સેનાના જવાનો સહિત સરકારના જે મોટા અધિકારીઓ છે, નેતાઓ છે, કેબિનેટ મિનિસ્ટર છે, તે પણ એક બાદ એક અહીંયા કેન્ટ વિસ્તાર ખાતે પહોંચી રહ્યા છે। અને અહીંયા તમામ જે લોકો છે તેમની આંખો અત્યારે નમ છે, કારણ કે તેમની સામે એક સાથે 13 જેટલા નશ્વર દેહ પડ્યા છે। તમામ લોકોને અત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી રહી છે, તેમને ફૂલ અર્પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને સાથે તેમને યાદ કરવામાં આવી રહ્યા છે। અંતિમ સલામી તેમને હાલ આપવામાં આવી રહી છે। તમિલનાડુના કન્નૂરમાં જે ઘટના બની હતી, એક સાથે જે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું તેવામાં 13 લોકોનું મોત થયું છે, મૃત્યુ થયું છે। તેવામાં અત્યારે જનરલ રાવત છે તેમને અત્યારે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી રહી છે। થોડી ક્ષણો પહેલાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ત્યાં પહોંચ્યા હતા, તેમણે પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી। ત્યારબાદ એક બાદ એક કેબિનેટ મિનિસ્ટર અહીંયા આવશે અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાના છે। ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બિપિન રાવત આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી અને તે માની શકાય તેવું પણ નથી, કારણ કે તેઓ જે રીતે જસબાદી લડતા હતા અને તેમણે જે અત્યારે તેમનું મૃત્યુ થયું છે તેને લઈ આખો દેશ અત્યારે શોકમાં છે, ગમગીન છે। તેવામાં તેમનો જે પરિવાર છે તે અત્યારે મજબૂતાઈથી અહીંયા હિંમતપૂર્વક અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। ચોક્કસથી તેમને દુઃખ છે, પરંતુ તે પણ અત્યારે આ જે ગમ છે તેમાં કેવી રીતે અત્યારે દેશ સાથે મજબૂતાઈથી કેવી રીતે ઊભું રહેવું તેને લઈને એક દ્રષ્ટાંત પણ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે। થોડીક ક્ષણો પહેલાં આપણે જોયું હતું કે તેમની જે દીકરી છે તે પણ ત્યાં પહોંચી હતી અને સાથે જ તે વિશે પણ જ્યારે બિપિન રાવત કહેતા હતા કે મારી દીકરી છે તે એક ભવિષ્ય છે, એક ઉજાસ પાથરનારી છે, પરંતુ અહીંયા આપણે જોયું હતું કે જ્યારે મુખાગ્નિના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા ત્યારે તેમનો પરિવાર પણ અહીંયા જોવા મળ્યો હતો। આ દ્રશ્યો છે અમિત શાહના કે જે થોડી ક્ષણો પહેલાં અહીંયા પહોંચ્યા હતા, તેમણે પણ નમન કર્યું હતું અને શ્રદ્ધાંજલિ પણ તેમણે પાઠવી હતી। તેમના પરિવારજનો સાથે પણ તેમણે મુલાકાત કરી હતી। સૌપ્રથમ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અહીંયા પહોંચ્યા છે અને તેમણે તેમનો જે નશ્વર દેહ છે તેને નમન કર્યા હતા અને શ્રદ્ધાંજલિ પણ પાઠવી હતી। અમિત શાહ બાદ અનેક જે કેબિનેટ મિનિસ્ટર છે તે પણ અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે। અમિત શાહ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં તેમણે નમન કર્યા હતા બિપિન રાવતને, શ્રદ્ધાંજલિ પણ પાઠવી છે। હાલ 1 થી 1.5 વાગ્યા સુધી આ જે નશ્વર દેહ છે તેમને અંતિમ વિદાય આપવા માટે, તેમના અંતિમ દર્શન માટે ત્યાં રાખવામાં આવ્યા છે। ત્યારબાદ તેમની અંતિમ યાત્રા પણ નીકળવાની છે। એક બાદ એક તમામ જે મહાનુભાવો છે તે અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે અને તેમને અંતિમ સલામી આપી રહ્યા છે, તેમને નમન કરી રહ્યા છે, તેમને યાદ કરી રહ્યા છે। તેના અલગ અલગ દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો। અમિત શાહ થોડી ક્ષણો પહેલાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ એક બાદ એક તમામ કેબિનેટ મિનિસ્ટર પણ અહીંયા આવવાના છે। તો સીડીએસ રાવતના નશ્વર દેહને અંતિમ સલામી આપવામાં આવી રહી છે। સંપૂર્ણ તેમને સન્માન સાથે તેમને અત્યારે યાદ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી રહી છે। સીડીએસ રાવતનું જે કરિયર છે તે ખૂબ જ મહત્વનું રહ્યું છે। સીડીએસના પદ સુધી તેઓ પહોંચ્યા છે, તેમણે ખૂબ જ દેશની સેવા કરી છે અને તે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી, તે અત્યારે માની શકાય તેમ નથી, તેવું લાગી જ નથી રહ્યું અને આખો જે દેશ છે તે ગમગીની મહેસૂસ કરી રહ્યો છે। તેમને અંતિમ સલામી આપવા માટે જાણે કે માનવ સહેલામણ ઉમટી પડ્યું છે અને લોકો અત્યારે એ માનવા જ તૈયાર નથી કે અત્યારે બિપિન રાવત આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી, પરંતુ આ દુર્ઘટના બની છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે તમિલનાડુના કન્નૂર વિસ્તાર ખાતે આ ઘટના બની હતી કે જ્યાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું। તો અમારા સહયોગી અજય યાદવ દિલ્હીથી જોડાયેલા છે, સતત આ મામલે અપડેટ્સ પણ અમને આપી રહ્યા છે કે ત્યાં અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે અને આખી જે આ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે તેમાં શું આગળ હવે प्रक्रिया थवानी है। अजय बताइए कि अभी दिल्ली में जो प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी देर पहले अमित शाह भी वहां पहुंचे थे, अभी कौन कौन मिनिस्टर वहां पहुंचने वाले हैं और इसमें पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगने वाला है? देखिए, इसके पहले एलएस लिद्धर जो कि बरार स्क्वायर जो आर्मी कंटोनमेंट का एरिया है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। उनको भी श्रद्धा सुमन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम सारे जो लीडर्स थे, जो तीनों सेना प्रमुख थे, उनके द्वारा दिया गया। और अब जो श्रद्धांजलि की प्रक्रिया है सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को दी जा रही है। इस वक्त हम लोग उनके आवास पर मौजूद हैं और एक के बाद एक तमाम सारे जो लीडर्स हैं
गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आए थे, सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार आए, उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद की अगर बात करें तो एक सीरीज है पूरी, जिसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी आए हैं, उनकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता हैं हरीश रावत, उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। रविशंकर प्रसाद की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अभी एमएल खट्टर जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और तमाम सारी एम्बेसी से जुड़े हुए जो उच्चायोग से या दूतावास से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी आने का सिलसिला शुरू हुआ है। मैंने इसके पहले थोड़ा नेपाल के कुछ उच्चाधिकारियों को देखा, उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। जबकि पहले से शेड्यूल जो कार्यक्रम है उसमें नेपाल, श्रीलंका और भूटान के जो आर्मी चीफ या आर्मी पर्सनल जो यहाँ पर आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से एक के बाद एक तमाम सारे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और एक तरह से कह सकते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को लोग अंतिम विदाई देने के लिए या अंतिम क्षणों का साक्षी बनने के लिए यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। आम पब्लिक भी अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकती है, इसलिए आम पब्लिक को भी आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। और उनके जाने के लिए एक खास तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं, रस्सियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि लोग अंतिम समय का गवाह बन सकें। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त गेट के सामने जो है तमाम सारे जो आम पब्लिक है उनके द्वारा नारेबाजी दिखाई दे रही है। लोग हाथ उठा करके सीडीएस बिपिन रावत को अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं। हालांकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको थोड़े टाइम में वक्त मिलेगा तो वो भी भीतर जाकर के अंतिम जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन एक एक करके लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है एक तरह से। और खास करके सीडीएस बिपिन रावत के अगर बारे में बात करें तो न सिर्फ ये आर्मी चीफ थे, बल्कि सीडीएस भारत के पहले सीडीएस बने। उनकी पॉपुलैरिटी एक आम सेना अधिकारी के तौर पे नहीं थी, बल्कि जिस तरह से भारत आक्रामक मोड में आया और जिस तरह से भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, चीन को जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पहले भारत की आर्मी के बारे में कहा जाता था, आपको याद होगा कि जब मुंबई में अटैक हुआ था उस वक्त भारत की आम पब्लिक चाहती थी कि इसका जवाब पाकिस्तान को मुंहतोड़ दिया जाए। बावजूद उसके जब जवाब दिया गया था तो कहीं न कहीं पब्लिक के मन में एक मलाल था। और फिलहाल आप देख रहे हैं जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। तो फिलहाल एक पूरा कन्वॉय है जो उनके साथ आया हुआ है और पुलिस की तरफ से अरेंजमेंट किया जा रहा है। थोड़े देख सकते हैं कि सामने दिखाई दे रहे होंगे मनोज सिन्हा कि वो भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पूरे देश में जो यहाँ पे आ रहा है अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, जो नहीं आ पा रहा है टेलीविजन के जरिए अंतिम समय का गवाह बना हुआ है। और इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने तरीके से कंडोलेंस। सर, इस अंतिम समय में जब सीडीएस बिपिन रावत को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप भी आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे खास करके सीडीएस बिपिन रावत के बारे में? आज उनका निधन तो एक ऐसा अपूर्णीय क्षति है कि पूरा देश को लगता है कि जैसे हमने अपने परिवार के किसी सपूत को खो दिया हो। क्योंकि जिस तरह से वो थल सेना अध्यक्ष के रूप में एक कुशल नेतृत्व, जिस तरह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का किया, या देश की सीमाओं पे आपने पहली बार देखा होगा एक सीडीएस के रूप में उन्होंने चाइना को भी जिस तरह से कहा कि हम दोनों मोर्चे पे चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये उनका निधन तो इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और देश की एक एक व्यक्ति शायद इस तरह से शोकाकुल है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक ऐसा दुख भी है, दर्द भी है कि जिसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा, निश्चित तौर पे कोई भी आर्मी पर्सनल जब शहीद होता है तो पूरे देश को दुख होता है, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत आम पब्लिक में इतने पॉपुलर थे, उसकी वजह क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि वो थल सेना अध्यक्ष होने के बाद भी उनमें जज्बा एक सिपाही का था और आम आदमी के साथ उनके मन में हमेशा रहता है कि जैसे आई बॉर्न ओनली फॉर द कंट्री टू प्रोटेक्ट माई कंट्री। और वो एक तरह से उनका सेक्रीफाइस का जज्बा रहता था। और देश कैसे एक मजबूत देश बने, एक आत्मनिर्भर भारत बने, देश की सीमाओं पे कोई आँच ना आने पाए। तो वो जहाँ एक फौजी थे, फौजी प्रायः आम सिविलियन से दूर रहते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा
था कि वो सिविलियन के साथ भी बहुत ही घुले मिले हुए थे और फौज के साथ हमारी तो कमेटीज में वो आते थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो उस कमेटीज में हमने देखा था कि उनके अंदर एक जज्बा था कि पहाड़ियों पे, हाई एल्टीट्यूड्स पे जो हम